With the name of Allah Almighty. Constitution 1973. Question 2. Provincial assemblies. Provincial assemblies. صوبے کی اسمبلیز. صوبے میں منتخب ہونے والے لوگ آخر کہیں تو بیٹھیں گے. ان کے لیے ایک عمارت بنائی گئی ہے. وہاں پر وہ سارے بیٹھتے ہیں. اپنے منسٹرز جتنے سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک کو بڑا بناتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ملک کو قوم کی بھلائی کی باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں. پیسے کے معاملات، پیسے حاصل کیے جاتے ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. ڈسکس ان ڈیٹیل دا کمپوزیشن. بناوٹ بتائیں پروونشل اسمبلی کی. فنکشن آف پروونشل اسمبلیز. یہ پروونشل اسمبلیز جو ہیں مختلف 4 یا 5 پاکستان کے صوبوں میں ان کا فنکشن کیا ہے، یہ بنتی کیسے ہیں. 2009 رائٹ نوٹ آر پروونشل آٹونومی ان پاکستان کہ پروونشل صوبے خود مختار ہیں، ان کی اسمبلیز خود مختار ہیں، وہ پیسہ خود خرچ کرتے ہیں اپنے صوبے میں. 2014. For complete answer, your host is over there, lecturer M.K. Bhutta. You can contact me for complete answer and audio and notes. My WhatsApp is 033346555305. Answer. Provincial assemblies are powerful and independent. خود مختار for 5 years. 5 سال کے لیے یہ اسمبلیز بنتی ہیں. ممبرز کوالیفیکیشن. جو شخص الیکشن میں کھڑا ہوگا منسٹر کے لیے پروونشل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اس کی یہ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. سٹیزن آف پاکستان, not less than 25 years, good character, Islamic if Muslim, مسلمان ہے تو وہ اسلامی بھی ہو، اس کے من میں اسلام ہو. moral reputation if non-Muslim, اگر کوئی سکھ کھڑا ہو گیا ہے، ہندو کھڑا ہو گیا تو مارلی لوگ اس کی عزت کرتے ہوں کہ اچھا آدمی ہے، بے ایمان نہیں. ناٹ اگینسٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی نظریے کے خلاف نہ ہو کہ یہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اس سٹیٹ کا مقصد اسلام کی پریکٹس ہے. اس سٹیٹ کا مطلب یہاں پر ہر شخص کو اپنے اپنے مبد میں جانے کی اجازت ہے. مبد مین عبادت قدا. آئیڈیالوجی کے خلاف نہ ہو. نیم ان الیکٹوریل رول. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک الیکٹوریل رول ہوتا ہے. الیکشن کے لیے وہاں پر تمام لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کا نام ہونا چاہیے، یعنی کہ ووٹر لسٹ میں نام ہونا چاہیے. ڈسکوالیفیکیشنز. کون سے لوگ ممبر نہیں بن سکتے پروونشل اسمبلی کے؟ ان ساؤنڈ مائنڈ، کمزور ذہن کے لوگ، پاگل، بینکرپٹ، دیوالیہ ہو گئے ہوں، جن کے اوپر قرض ہو. مارل اوفینس، جو زانی ہوں، رشوت لیتے ہوں، اچھے کردار کے مالک نہ ہوں. سٹیزن شپ آف اے فارن کنٹری، جو فارن کنٹری کے سٹیزن ہوں، ان کے پاس دوہری شہریت ہو. اب یہ تضاد ہے، اب ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. ہیونگ آفس آف
प्रॉफिट का ऑफिस उसके पास हो। इसकी एग्जाम्पल ये है, जिया बच्चन को पार्टी से निकाल दिया गया इस वजह से कि उसके पास फिल्म डेवलपमेंट की कोई इंडस्ट्री थी। नवाज शरीफ के ऊपर सबसे बड़ा क्लेम यही है कि उसके अपने लोहे के बड़े बड़े कारखाने हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं तो वो लोहा इस्तेमाल होता है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो अपना बिजनेस उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ऐसा कोई बिजनेस ना हो जिसका ताल्लुक उसकी सीट से बन जाए, उसकी पोस्ट से बन जाए। जब वो पोस्ट होल्ड करे तो साथ ही उसको अपने कारोबार में फायदा होने लग जाए। हैविंग या डिसमिस्ड, अगर गवर्नमेंट जॉब उसके पास है फिर भी वो मेंबर नहीं बन सकता। अगर गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस किया गया है कि ये दिमागी तौर पर पागल आदमी है, हमने इसे भर्ती कर दिया, डिसमिस करते हैं, या ये करप्ट है, करप्ट आदमी को गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस किया गया है, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ड्यू लोन 2 मिलियन, 20 लाख का लोन है उसके सर पर। गवर्नमेंट यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, उसने कोई बिल अदा नहीं किए, बिजली पानी गैस का, फिर भी नहीं आ सकता। अगर वो मेंबर बन गया, समझे कि आप मिनिस्टर बन गए, क्या क्या एंजॉय करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मुंह में आए बोलिए। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, किसी कोर्ट को आपने जवाब नहीं देना, जो मर्जी आए कीजिए। सैलरी अलाउंस, सैलरी भी मिलेगी और कमीशन अलाउंस भी मिलेंगे, फ्री अकोमोडेशन भी मिलेगी, और आपके पास हक होगा कि आप वोट दें। असेंबली में बैठकर वोट होते हैं किसी बिल पर, किसी बात पर। खोरम, आपके पास खोरम का इख्तियार है, यानी कि असेंबली में अगर जितने मेंबर्स हैं उनका चौथा हिस्सा किसी चीज़ के हक में वोट दे देता है, समझो कि वो बिल पास हो जाता है, वो बात पास हो जाती है। ये भी इख्तियार आपके पास है, ये भी आप इंजॉय करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। डायरेक्ट एंड फ्री वोट्स, डायरेक्ट आवाम आपको वोट डालती है, देखते नहीं आप इश्तिहार लगाते हैं बड़े बड़े ऐसे। औथ, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वोट भारी अक्सरियत से ले लेते हैं, तो आप वहाँ जाकर ओथ देते हैं, कसम देते हैं, हल्फ देते हैं कि आप इस मुल्क के साथ वफादार रहेंगे, आप करप्शन नहीं करेंगे, आप अपने लोगों को फेवर नहीं देंगे। ओथ की हेडिंग में आप जितना मर्जी अच्छी बातें हैं लिख दीजिए। सिलेक्शन ऑफ स्पीकर, फिर आप अपनी असेंबली का स्पीकर सिलेक्ट करते हैं। प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर भी होता है ना एक। फंक्शन, पावर ऑफ पीए, फंक्शन ड्यूटीज या पावर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। फिनंशियल अफेयर्स, बजट बनाते हैं, टैक्सेस को डिस्कस करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, टैक्सेस ख़त्म करते हैं, मनी बिल्स देते हैं कि हमारे सूबे के अंदर पानी पीने का नहीं है तो इतना पैसा चाहिए जिससे नए बोर होंगे और फिल्टर लगेंगे और पानी मुहैया किया जाएगा कौम को, आवाम को। लेजिस्लेशन, कानून साजी करते हैं आप। जितने भी मदरसे हैं उनमें जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, ज़रूरत है कि उनके नाम रजिस्टर्ड हों, कानून बनाते हैं आप। रिजेक्ट करते हैं कंप्लेंट्स को जो आपके खिलाफ या लोग करते हैं जो शिकायत, या रिएक्ट करते हैं कंप्लेंट्स को, मसले का हल निकालते हैं या उसके गले पड़ जाते हैं जिसने आपको कंप्लेन किया हो। गवर्नर कैन एड्रेस, और गवर्नर जो कि फेडरल की तरफ से होता है, वफाक की तरफ से होता है, गवर्नर वो आकर प्रोविंशियल असेंबली में एड्रेस कर सकता है, करने नहीं देते, याद रखिएगा। डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबली, और गवर्नर ही प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन मशवरे के साथ, या स्पीकर का मशवरा होता है या फिर चीफ मिनिस्टर का
शहबाज शरीफ का मशवरा होगा तो फिर होगा कि असम्बली ख़त्म हो जाए। ज़रा देखते हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी में कितनी कितनी सीट्स हैं। पंजाब जर्नल सीट्स 297 हैं, वेमेन की 66 हैं, मिनॉरिटीज़ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन 8 हैं, टोटल 371 हैं। सिंध 130 जर्नल, औरतें 29 शर्मिला फरूकी है, मिनॉरिटीज़ 9। सिंध में हिंदू ज़्यादा हैं, पंजाब में सिख ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान 51 है, एरिया बड़ा है बलूचिस्तान का, लोग थोड़े हैं। 51, वेमेन 11, शुक्र 11 है, मिनॉरिटीज़ 3। केपी के सरहद भी कहते थे, खैबर पख्तूनख्वा 99, वेमेन 22, मिनॉरिटीज़ 3, 124 टोटल। तो अब आपने एग्ज़ाम में लिखना क्या है प्रोविंशियल असम्बली पर? आपकी मेजर बात जो है डिस्कस है कि ये इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, 5 ईयर्स के लिए है, और इसका मेंबर की क्वालिफिकेशंस हैं, डिसक्वालिफिकेशंस हैं। ये बात डिस्कस करने के बाद आप लिखेंगे ये इंजॉय क्या करते हैं, एकोमोडेशन, सैलरी। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट वोट पड़ते हैं, कसम लेते हैं, हल्फ लेते हैं। फंक्शन, पावर्स क्या इसके पास है, ड्यूटीज़ क्या इसके पास है? आप बताएंगे बजट, टैक्स, मनी बिल, लेजिस्लेशन, कानून साजी भी करते हैं, कंप्लेंट, क्योंकि ये अवामी इदारा है, ये लोगों की बातें सुनेंगे, ये लाजमी उनकी शिकायत दूर करेंगे, अवाम के साथ इनका इंटरेक्शन रहेगा, और असम्बलीज ख़त्म भी हो सकती हैं, गवर्नर कर सकता है। सुनाई सफ़ी।